سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ شہزادی لیلا بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے وہ اس کو بہت چاہتا تھا۔ ملکہ بھی اپنی شہزادی سے بہت محبت کرتی تھی اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ شہزادی لیلا کی پرورش بڑے ہی ناز و نم سے ہوئی تھی۔ وہ نہ صرف بے انتہا خوبصورت تھی بلکہ دل کی بھی بہت ہی نیک تھی اور سب سے بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ اس کی 10ویں سالگرہ نزدیک تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس سالگرہ پر اسے کوئی بہت سا اچھا سا تحفہ دے۔ اس نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ شہزادی لیلا کو باغ میں رہنا، وہاں کھیلنا کودنا اور پڑھنا لکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ باغ تھا بھی بہت خوبصورت، اس میں پانی کا ایک فوارہ بھی تھا اور موروں کا پنجرا بھی۔ اس کے اس شوق کو دیکھتے ہوئے بادشاہ کے ذہن میں ایک بہت اچھا سا خیال آ گیا۔ اس نے اگلے روز ملک کے سب سے بڑے ماہر تعمیرات شیر فگن کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ باغ میں شہزادی لیلا کا ایک ایسا کمرہ تیار کر دے جسے دیکھ کر شہزادی خوش ہو جائے۔ شیر فگن نے کہا، جہاں پناہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ شہزادی صاحبہ کے لیے میں ایک ایسا عمدہ کمرہ بناؤں گا جو دیکھے گا تعریف کیے بنا نہیں رہ سکے گا۔ اسے دیکھ کر شہزادی بھی خوشی سے پھولے نہیں سمائے گی۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شہزادی کی سالگرہ بہت ہی قریب تھی، اسی لیے کمرہ بنانے کا کام فوراً شروع کر دیا گیا۔ بہت سارے مزدور اس کام پر لگے ہوئے تھے اور کمرے کی تعمیر پر دن رات کام ہو رہا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کے پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اس سے درخواست کی کہ وہ اپنے محل میں کچھ تبدیلیاں کروانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے شیر فگن کو چند دنوں کے لیے اس کے ملک میں بھیج دیا جائے۔ شیر فگن اتنا اچھا ماہر تعمیرات تھا کہ اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ عمارتوں کی بہترین تعمیر میں اسے کمال حاصل تھا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنے دوست کی درخواست کو رد نہ کر سکا اور اس نے شیر فگن کو حکم دیا کہ وہ جا کر اس کے دوست کے محل میں جو وہ چاہتا ہے اس طرح کی تبدیلیاں کر دے۔ شیر فگن وہاں چلا گیا۔ شہزادی کے کمرے کا تھوڑا سا کام ہی باقی تھا۔ شیر فگن راج مستریوں اور مزدوروں کو کام کے سلسلے میں چند ہدایات دے کر وہاں سے چلا گیا۔ شہزادی لیلا کی سالگرہ سے ایک دن پہلے کمرہ پوری طرح سے تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے کمرے کا معائنہ کیا تو بہت زیادہ خوش ہوا۔ وہ کمرہ شیشم کی قیمتی لکڑیوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس میں داخل ہوتے ہی ایک فرد بخش ٹھنڈک کا احساس ہوتا اور کمرے میں استعمال شدہ لکڑیوں سے بھینی بھینی خوشبو آتی۔ کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی۔ اس کھڑکی کے اوپری حصے پر کسی دھات کی چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی نلکیاں لٹکی ہوئی تھی۔ جب کھڑکی سے ہوا اندر داخل ہوتی تو ان نلکیوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی بیل بجنے کی آواز پیدا ہوتی۔ اس میں کوئی خاص تکنیک استعمال کی گئی تھی جو بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آئی، مگر وہ شیر فگن کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ کمرے میں ایک چھوٹا سا قیمتی اور خوبصورت بستر تھا جس پر ریشم کا گدا اور تکیے تھے۔ 3 چھوٹی بڑی کرسیاں ایک میز کے گرد رکھی تھی۔ کونے میں ایک چھوٹی سی الماری بھی تھی۔ شہزادی نے جب اتنا خوبصورت کمرہ دیکھا تو اس کی خوشی اس کی آنکھوں سے ظاہر ہونے لگی۔ اس نے بادشاہ کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کی سالگرہ پر اتنا شاندار کمرہ بنوا کر دیا ہے۔ اس کی سالگرہ بہت ہی دھوم دھام سے منائی گئی اور اس میں وزیروں اور رئیسوں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شرکت کی۔ سالگرہ والے روز شہزادی کا کمرہ اس کے حوالے کر دیا گیا۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ اب وہ اسی کمرے میں رہا کرے گی۔ بادشاہ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس نے سپاہیوں کے افسر کو بلا کر ہدایت کر دی کہ شہزادی کے کمرے کے باہر
पहरेदारों को तैनात कर दिया जाए। उस अफसर ने 12 सिपाही शहजादी के कमरे की हिफाजत की गर्ज से लगा दिए। रात को खाने के बाद शहजादी लैला बादशाह और मलका से मिलकर अपने कमरे में आ गई और वो अपने कमरे को देखने लगी। बादशाह और मलका भी उसके साथ उसके खूबसूरत कमरे में आए। वो बहुत खुश थी। उसको खुश देखकर बादशाह और मलका भी खुश हो गए। थोड़ी देर बैठकर वो दोनों वहां से वापस महल में चले गए और शहजादी खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगी। खिड़की से पूरा बाग नजर आ रहा था। बाग में चारों तरफ तरह तरह के खुशनुमा फूल खिले हुए थे। दरख्तों पर फल लगे हुए थे। रात होने की वजह से तमाम परिंदे अपने अपने घोंसलों में जा चुके थे। दिन होता तो शहजादी इन्हें भी चहचहाता हुआ देखती। खिड़की में से बाग का ये हसीन और जमील मंजर देखकर शहजादी मसरूर होकर रह गई। कुछ ही देर बाद उसे नींद ने आ लिया और वो अपनी बिस्तर पर आकर सो गई। उसकी आंख सुबह ही सुबह खुल गई। वो बिस्तर से पांव लटकाकर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मगर ये क्या, खिड़की में उसे महल के करीब बहता हुआ दरिया नजर आया। दरिया में उसे कश्तियां भी तैरती हुई नजर आई। उनमें सवार मछेरे मछलियां पकड़ रहे थे। खौफ की एक सर्द लहर शहजादी के जिस्म में दौड़ गई। उसे अच्छी तरह से याद था कि रात सोने से पहले वो खिड़की में से बाग का नज़ारा देख रही थी। उसने जो फूलों के पौधे और फलों के दरख्त देखे थे उसे अच्छी तरह याद थे। अब उस खिड़की में से दरिया का मंजर दिखाई दे रहा था। वो हैरान और परेशान हो गई। उसने जल्दी से जूते पहने और वो महल की जानिब दौड़ पड़ी। बादशाह के पास आई और उसने जल्दी जल्दी बादशाह को पूरी तफसील बताई। उसकी बात सुनकर बादशाह मुस्कुराने लगा और उसने सोचा कि शहजादी ने ज़रूर कोई ख्वाब देखा है। बादशाह की बेयकीनी शहजादी ने भांप ली और उसने अपने वालिद से कहा, आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, आप खुद चलकर देख लीजिए। उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ उस कमरे में ले आई। कमरे के चारों तरफ सिपाही पहरा दे रहे थे। बादशाह को देखकर उन्होंने उसे ताज़ीम पेश की। शहजादी और बादशाह जब कमरे में दाखिल हुए तो शहजादी के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। खिड़की से अब उसे महल के करीब जो पहाड़ियाँ थी वो नजर आ रही थी। पहाड़ियों पर बेतहाशा झाड़ियाँ उगी हुई थी और चंद चुराहे वहाँ अपनी भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे। बेटी, तुम तो कह रही थी कि खिड़की में से दरिया नजर आ रहा है, मगर ये तो पहाड़ियाँ हैं, बादशाह ने शहजादी से कहा। उस वक़्त दरिया ही नजर आ रहा था। शहजादी बेबसी से बोली, चलो अब महल में चलते हैं, दरबार का भी वक्त हो रहा है, यहाँ फिर बाद में आएंगे। बादशाह ने शहजादी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। शहजादी सोच में डूबी उसके साथ चल पड़ी। महल में पहुंचकर बादशाह तो दरबार में चला गया। शहजादी ने पूरी दास्तान मलका को सुना दी। मलका को यकीन था कि शहजादी झूठ नहीं बोलती। वो सोच में पड़ गई कि मामला क्या है। थोड़ी ही देर बाद वो बोली, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, अब तुम अकेली उस कमरे में मत रहना। शहजादी खुद डर गई थी। वो भी उस जादू के कमरे में नहीं रहना चाहती थी। शाम होने से पहले बादशाह तमाम कामों से फारिग हो गया। उसने अपने साथ मलका और शहजादी को लिया और उस पुरसरार कमरे की तरफ चल दिया। वो लोग वहां पहुंचे तो बादशाह को भी एक बात खट गई। उसे अच्छी तरह से याद था कि सुबह जब वो शहजादी के साथ उस कमरे में दाखिल हुआ था तो कमरे के दरवाजे के सामने पानी का फुवारा था। अब दरवाजे के सामने मोर का पिंजरा नजर आ रहा था। बादशाह ने उस बात का तज़किरा शहजादी से नहीं किया कि कहीं ये बात सुनकर वो मज़ीद न डर जाए। वो तीनों जब कमरे में पहुंचे तो खिड़की का मंजर बदल चुका था और अब वहां बाग में लगे हुए फूल पौधे नजर आ रहे थे। अब्बा हजूर, देखा आपने, मैं सच कह रही थी ना? शहजादी लैला ने बड़े ही जोश से कहा।
हमारी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। तुम सच कह रही थी। अब हमें इस बात का खोज लगाना पड़ेगा कि कमरा बार बार क्यों घूम रहा है। जब तक हम इस बात का पता नहीं चलाएंगे ये मामला क्या है, हमारा हुक्म है कि इस कमरे को ताला लगा दिया जाए और चाबी हमारे हवाले कर दी जाए। बादशाह के हुक्म की फौरन तामील की गई। शहजादी के उस नए कमरे को ताला लगाकर चाबी बादशाह की खिदमत में पेश कर दी गई। बादशाह ने सोच लिया था कि वो शेर पगन से इस सिलसिले में बात करेगा। वो तो पड़ोस के मुल्क में उसके दोस्त बादशाह के काम से गया हुआ था, इसीलिए बादशाह उसका इंतज़ार करने लगा। एक हफ्ते बाद शेर पगन की वापसी हुई। बादशाह ने उसे फौरन तलब कर लिया। वो हाजिर हुआ और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, तुमने शहजादी का कमरा बहुत अच्छा बनाया है, मगर एक बात से हम परेशान हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी सिमत तब्दील हो जाती है। खिड़की में से कभी बाग नजर आता है तो कभी पहाड़ियाँ और कभी समंदर। आखिर इसकी वजह क्या है? शहजादी इस वजह से बहुत ज्यादा डर गई है। शेर फगन ने हाथ बांधकर अर्ज की, हजूरे वाला, आपके इरशाद के ऐन मुताबिक मैंने शहजादी साहिबा के लिए बेमिसाल कमरा बनाने का सोचा था। चंद साल पहले मैं मुल्क मिस्र गया था। वहाँ मैंने कुल का घोड़ा भी देखा था। वो घोड़ा होता तो लकड़ी का है, मगर उसके अंदर लोहे की गिराइयाँ वगैरह लगी होती हैं और उनको चलाने के लिए घोड़े की रकाबों में कुल पुर्जे लगे होते हैं, जिनकी वजह से वो दौड़ता और भागता है। उस काम का माहिर मेरा एक दोस्त था। मैंने कुछ अरसा लगाकर उससे इस हुनर के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल कर ली थी। मैं जब शहजादी साहिबा का कमरा बनाने लगा तो मुझे ख्याल आया कि मिस्र से सीखे हुए इल्म को यहाँ आजमाऊं। मैंने इस कमरे की बुनियाद बहुत सारी लोहे और पीतल की गिराइयों पर रखी है और उनको कमरे से बाहर फर्श में लगी बड़ी बड़ी पक्की सिलों से मुंसलिक कर दिया है। कोई शख्स अगर इन सिलों पर पाँव रखता है तो कमरे के नीचे लगी हुई गिराइयाँ हरकत करके कमरे को थोड़ा सा घुमा देती हैं। कमरे के बाहर सिपाही जो कि हर वक्त गश्त में मसरूफ रहते हैं और उस गश्त के दौरान उनके कदम सिलों पर पड़ते रहते हैं, इसलिए कमरा भी मुसलसल हरकत करता रहता है और खिड़की से बाहर के मनाज़िर तब्दील होते रहते हैं। मुझे अचानक यहाँ से जाना पड़ गया, वरना मैं आपको ये सारी मालूमात पहले ही बता देता। उसकी बात सुनकर बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और उसने कहा, तुम वाकई ही बहुत काबिल और हुनरमंद हो। हमें तुम पर फख्र है कि हमारी रया में तुम जैसे लोग भी मौजूद हैं। ये सब तालीम का कमाल है। इसीलिए तो कहते हैं कि इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। बादशाह ने खुश होकर शेर पवन को ढेर सारा इनाम व कराम दिया। फिर उसने शहजादी लैला को भी कमरे की पूरी तफसील से आगाह किया। ये तफसील सुनकर शहजादी का खौफ भी दूर हो गया और वो मज़े से बाग के इस घूमने वाले कमरे में रहने लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।